مولوی صاحب، مولوی صاحب. ارے کون؟ میں ہوں مولوی صاحب شمشیر علی، آپ کا شاگرد شمشو. ہاں شمشو. شمشو شمشو، تو نے کہا تھا بیٹے کہ جمعے کے دن تیرے پاس بڑے گاہک ہوتے ہیں، ہفتے کو بچے کے بال کاٹ دوں گا. کاٹ دیا بیٹے؟ اجی کاٹ دیا ہوں مولوی صاحب، انگریزی بال کاٹ دیا ہوں. ارے کہیں بچہ ضائع تو نہیں ہو گیا؟ حجی کہیں انگریزی بال کاٹنے سے بچہ ضائع ہوتا ہے مولوی صاحب؟ ارے بابا میں اس انگریز کی حجامت سے بہت ڈرتا ہوں. نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ کیا کہا؟ لڑکیاں نہیں لاتا، مدرسے میں لڑکیوں کو لا کر مدرسے کو ایجوکیشن بنا کر کیا لڑکوں کو تباہ کر دوں؟ اجی بہرے ہو گیا ہو کیا؟ میں کہہ رہی ہوں لکڑیاں 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 تو لاتے نہیں تو اوپروں میں دھواں نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ خاموش! غیر مردوں کو آواز سناتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ زبان کھینچ کے حلال کر دوں گا. یہ عورتوں کی ذات ہوتی ہی کم ہے. گندا ہوگا تمہاری ماں رہے تمہارے ہوتے خدا کی قسم جتنا صبر کرتا چلا جا رہا ہوں اتنے ہی سر پہ چڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ عورت ہے یا ہندوستان؟ بند کر دے ٹھنڈا. دفتر سے فائل لا. فائل؟ دفتر؟ ارے محکمہ تعلیم کی فائل. اچھا دفتر. ہاں دفتر. چل وہ درخواست پڑھ کے سنا. کون سی جی؟ وہ جو محکمہ تعلیم کو لکھوائی تھی؟ ہاں وہی. ابھی لو جی. 786/92. ارے وہ تو بسم اللہ کی جگہ لکھا جاتا ہے نا کم مکر. بخدمت شریف عالی جناب عزت مآب و فضیلت مآب وہ زیر تعلیم صاحب. زیر تعلیم؟ زیر تعلیم؟ ارے زیر تعلیم؟ زیر تعلیم؟ ارے وہ وزیر تعلیم ہے نا، وہاں پر زور دے کر پڑھ. 1000 دفعہ پڑھا چکا ہوں. واو سے ووٹ، ووٹ کا واو زیر تعلیم کے آگے لگا دیتے ہیں تو زیر تعلیم وزیر تعلیم بن جاتا ہے. کیا اللہ کی شان. بتاؤں اللہ کی شان؟ نہیں بتاؤں. چلا کے پڑھ. وزیر تعلیم صاحب قبلہ و کعبہ دام اقبال یہ ہو ہا ہا ہی کیا کر رہا؟ اسے کوئی ریڈیو پاکستان سمجھ رہا ہے کہ جہاں اقبال کا نام آیا شروع ہو گئی قوالی ہو ہا ہا ہی. ارے وہ دامن اقبال ہے بابا، دامن اقبال. دامن اقبال پھر روز سنتے سنتے عادت ہو گئی ہے مولوی صاحب. عادت ہو گئی ہے تو عادت کو بدلنا پڑے. لکھا کیا لکھا ہے؟ لکھا تو ٹھیک ہے. اچھا لکھتا کچھ ہے، پڑھتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے. ادنا کا ساکھ کو دیکھو، لیڈروں جیسی حرکت کرتا ہے. چل آگے پڑھ. وزیر تعلیم صاحب قبلہ و کعبہ دامن اقبال ہم جملہ خرد و کلاں یہاں پر خیریت سے رہ کر آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب. نیک مطلوب ذرا مشکل لفظ ہے، اس کے آگے چاہتا ہوں بھی لکھ دے. یہ نہیں سمجھے تو یہ سمجھ جائیں گے.
ہاں ٹھیک چاہتا نیک مطلوب چاہتا ہوں دیگر طوائف یہ ارے کم بخت ارے اسلامی مملکت میں طوائف کا نام لے رہا کم بخت ارے کس آگ میں جلایا جائے گا جہنمی ارے طوائف ارے طوائف ارے کم بخت وہ قوائف ہے قوائف کیفیتوں کی جمع ہاں کیفیتوں کی جمع ہاں جمع الجمع چلا گیا بات دیگر قوائف یہ ہے کہ مدرسے کا کام بڑی عمدگی سے چالو ہے. ہاں یہ جملہ بہت اہم ہے. اس کے اوپر انڈر لائن کرتے. اوپر انڈر لائن کروں اور کیا نیچے کرے گا؟ نہیں نیچے کرے گا. نہیں اوپر ہی. بڑی عمدگی سے چالو ہے. ہاں مگر 6 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کے سبب مدرسے کو شاگردوں کا قرضہ ہو گیا ہے. مولوی صاحب ارے کون کم وقت ہے یہ؟ بھائی صاحب چراغ شاہ پکار رہا ہے. چراغ شاہ. چراغ شاہ؟ ہاں ارے وہ تو الیکشن کی آواز ہے دیوانے. چراغ شاہ زندہ باد. چراغ شاہ زندہ باد. پاکستان کے چراغ شاہ، ہندوستان کے 32 سنگھ دونوں زندہ باد. مصیبت تو ہماری تمہاری آئی ہے کم وقت. ارے کون کم وقت ہے یہ؟ اجی آپ کا شاگرد چراغ شاہ پکار رہا ہے. ہاں چراغ شاہ. اچھا چراغ شاہ نے میری شاگردی قبول کر لی. بڈھے کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک. میں پہلے ہی کہتا تھا کہ بابا اگر وزیر بننا ہے تو کم سے کم دستخط کرنا سیکھ لے. مگر مولوی صاحب وہ تو کہہ رہا تھا کہ اب کے ایک مہر بنوا لے گا. ہاں حکومت کے کام تو مہر سے بھی چل سکتے ہیں، لیکن منتخب ہونے کے بعد دوسروں کی لکھی ہوئی تقریر کو خود پڑھنا پڑتا ہے. نہیں تو پبلک پہچان کر نعرے لگا دیتی ہے. ارے کون کم وقت ہے یہ؟ اجی اپنا چگو ہے مولوی صاحب. چگو آجا. چگو آجا. آجا. کیا مولوی صاحب کر رہا ہے؟ آجا. کیا بات ہے چگو بیٹے، آج اتنے دنوں کے بعد مدرسے آئے ہو اور وہ بھی بغیر کتابوں کے، اور یہ ہاتھ میں کمچی کیوں ہے بیٹے؟ کمچی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ 20 دن ہو گیا 20 روپے نہیں واپس نہیں دیتے تو کمچی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ مولوی صاحب کمچی ہوتی ہی بری چیز ہے، اس سے تو بڑے بڑے شیر بھی بھاگتے ہیں. چکو بیٹے میں نے تجھ سے 20 روپے ادھار لیے تھے، 10 روپے تو واپس کر چکا ہوں. ہمارے سامنے واپس کیا ہے. باقی 10 کا کیا ہوگا؟ باقی 10 کا کیا ہوگا؟ باقی 10. ارے جب حکومت نے ہماری گرانٹ آدھی کر دی ہے تو میں تیرے پورے پیسے کیسے دے سکتا ہوں؟ اس پر تو استاد کو کمچی دکھاتا، مدرسے کو کمچی دکھاتا. ارے اگر ہمت ہے تو اوپر دکھا. اوپر بھی دکھائے دکھائے گا، اوپر بھی دکھائے گا. ارے کیوں بغاوت میں تلا ہوا ہے چکو؟ اب آیا ہے تو بیٹھ، آج ایک نیا سبق پڑھاؤں گا بیٹا. بیٹھ 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 جا چنگو بیٹھ جا نہیں بیٹھے بیٹھ. ہاں تو کہاں تک لکھا تھا؟ یہ کس کا گھوڑا ہے کمبخت؟ ساری جھگی کی جھگی کھائے چلا جا رہا ہے. ہاں گھوڑا جھگی؟ ارے وکٹوریا کہاں چھوڑا تیرا گھوڑا میرا چکی کھا رہا. بھاگ 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 بھاگ. کیا بات ہے میں نے کوئی کارنامہ کیا؟
بہت بڑا کارنامہ بنتا، بہت بڑا کارنامہ۔ ارے سنتی ہو، میں نے ایک کارنامہ کیا ہے۔ ذرا زور سے بولو، بچے کا ماموں بھی آیا ہوا ہے۔ وہ قرض خواہ کو بڑھانے کی ترکیب تو کچھ آپ بھی کو آتی ہے مول صاحب۔ کم نہیں ہے، ارے قرض لینا بھی مشکل کر دیا۔ ارے بابا میں ایک غریب آدمی ہوں، میں قرض لیا تو کیا ہوا؟ آج کل تو بڑی بڑی حکومتیں قرض لیتی ہیں۔ آگے بڑھ۔ مدرسے کو شاگردوں کا قرضہ ہو گیا ہے، اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ شاگرد استاد کو قمچی دکھانے لگے۔ قمچی دکھانے لگے ہیں؟ ارے کاٹ ارے کم مقاد، ارے جملہ کاٹنے کو کہا تھا، اظہار بند کاٹ دیا۔ دن بھر کی محنت اور چھیانے کا ستیاناش مار دیا، کم مقاد۔ رکھ دو بیٹے، رکھ دو۔ تیز ہتھیار کا کھیل اچھا نہیں ہوتا بیٹے، ہاتھ وات کٹ جائے گا نا بیٹے، خون نکل آئے گا۔ رکھ دو بیٹے، رکھ دو، رکھ دو، رکھ دو۔ دیکھو خلیفہ نے رکھ دیا ہے، اب آپ بھی رکھ دیجئے۔ تیز ہتھیاروں کا کھیل اچھا نہیں ہوتا بیٹے، اس سے ہاتھ کٹ جائے گا۔ رکھ دو بیٹے، رکھ دو، رکھ دو، رکھو بیٹے۔ کوئی چھرا دکھا رہا ہے، کوئی قینچی دکھا رہا ہے، کوئی قمچی دکھا رہا ہے۔ مدرسہ تعلیم بالغان کیا ہوا؟ سیوک سر کا جلسہ ہو گیا۔ چل آگے بڑھ۔ بس یہیں تک لکھائے تھے، تو آگے لکھ۔ بولیے۔ جناب والا، جناب والا۔ ارے کم بخت، عاجزی سے لکھو بیٹے، عاجزی سے لکھو۔ درخواست منظور ہونے کی ہے نا بیٹے، 6 مہینے سے مجھے تنخواہ نہیں ملی نا۔ عاجزی سے لکھو بیٹے، عاجزی سے لکھو، عاجزی سے لکھو بیٹے۔ جناب والا، جناب والا۔ ارے رو رہا کیوں؟ عاجزی سے لکھ رہا ہوں نا مولوی صاحب۔ عاجزی سے لکھو بیٹے، عاجزی سے لکھ رہا، لکھو بیٹے لکھو۔ تیری عاجزی کے قربان بیٹے، پڑھنے والوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے بیٹے۔ 6 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی مجھے، لکھو بیٹے لکھو۔ جناب والا، جناب والا، گزشتہ سال آپ کے رحم و کرم سے، آپ کے رحم و کرم سے، عذراہ مرحمت، عذرائے مرمت، مرمت نہیں مرحمت، ہاں مرحمت، حمد، مرحمت، مرحمت، عذراہ مرحمت، مرحمت، مدرسہ تعلیم بالغان کے لیے، مدرسہ تعلیم بالغان کے لیے ایک دری، ایک دری
ایک چھڑی، ایک چھڑی، ایک بلیک بورڈ، ایک بلیک بورڈ، ایک لکڑی کا صندوق، ایک لکڑی کا صندوق. او ہو قابلیت دیکھ رہے ہیں. صندوق سواد سے لکھ رہے ہیں صاحبزادے. سواد سے ہے صندوق، سواد سے، سواد سے، ایمان سے سواد سے، سواد سے ہے. قسم خدا کی سواد سے. صندوق سواد سے. ہاں اور کیا؟ سواد سے، سواد سے، سواد سے ہے. سواد سے. ہاں ارے وہ ساگوان کا ہے نا. میں بھی ہمیشہ سے یہی غلطی کرتا آیا تھا. خدا سلامت رکھے، ایک دن انسپکٹر صاحب معائنے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے میری یہ غلطی درست کی. کیا غلطی درست کی آپ کی؟ یہی کہ ساگوان کا صندوق سین سے لکھنا چاہیے. ساگوان کا صندوق سین سے اور شیشم کا کیوں؟ شیشم کا شین سے نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. جو انسپکٹر صاحب چاہے وہی ہوتا. شیشم کا شین سے. ایک لکڑی کا سین سے صندوق. وہ 19 ارے 19-20 نہیں بابا، وہ نیز. وہ نیز. ہاں دیکھو، حجام کو عقل ہے، تیرے کو عقل نہیں. وہ نیز. ہاں وہ نیز. نیز 3 گھڑے، 3 گھڑے، مسمی اتحاد، مسمی اتحاد، تنظیم تنظیم اور یقین محکم عطا کیے گئے تھے. اور یقین محکم عطا کیے گئے تھے. تو مدرسے کے ناہنجار طالب علموں نے، مدرسے کے ناہنجار طالب علموں نے آپس میں لڑ جھگڑ کر، آپس میں لڑ جھگڑ کر اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے. مولوی صاحب، یہ اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے مولوی صاحب؟ ہے ارے خود ہی توڑ کر پوچھ بھی رہا ہے. چوری اوپر سے سینہ دوری. میں تھوڑا. ارے تو گدو بندر کا تو نہیں ہے. ارے واہ، ارے میں تو باس بریلی کا ہوں، باس بریلی کا. میں تو باز بریلی کا ہوں، باز بریلی کا ہے. کھاتے پاکستان کا، گاتے باز بریلی کا. آج جس کو دیکھو، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بنگالی ہے. ہر شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا رہا ہے. اور لائق شاگرد پوچھ رہے ہیں یہ اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے مولوی صاحب؟ ارے ٹکڑے ٹکڑے تو تمہارے ہونے سے کم وقت. اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. تنظیم کا گلا غائب، تنظیم کا گلا غائب، اور تیندے میں سوراخ ہو گیا ہے. اور تیندے میں سوراخ ہو گیا ہے. مولوی صاحب، خیر یہ اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو گئے تھے، پر یہ تنظیم کا گلا کس نے غائب کیا؟ ارے مدرسے میں بیٹھ کر بیڑی پی رہا. بجھا بیڑی، بجھا بیڑی. او ہو ادب ہو رہا ہے، ادب. مولوی صاحب سے بیڑی چھپا ہے، بیڑی. آج شاگرد مدرسے میں بیٹھ کر بیڑی پیتے ہیں، چپراسی افسروں سے ماچس مانگتے ہیں، افسر رشوت لیتے ہیں، لیڈر قوم کو دھوکہ دیتے ہیں. اور لائق شاگرد پوچھتے ہیں یہ تنظیم کا گلا کس نے غائب کیا مولوی صاحب؟ ارے گلا تو تمہارا غائب ہونا تھا کم وقت. ارے ایک کے منہ سے نکلی دوسرے کے منہ میں. بجھا بھی بجھا بجھا. چل نکال کتنے بکے ہیں، رکھ.
एक बंडल में से 2 बीड़ियां, बीड़ी बनाते बनाते हमारी ये उम्र हो गई, हमको ही गोल फिरा रहा। चलो एक और है बस। चल एक हो, आधी हो, रखो रखो। कम बात कहीं के, हम पहले ही बोल रहे थे आधे आधे कर। मदरसे में बैठकर बीड़ियां पीते हैं कम बात। तंजीम का गला गायब और पेंजे में सुराख हो गया है। ले दे के एक यकीन मुहकम रह गया है, एक यकीन मोहकम रह गया है, जिस पर काम चालू है, जिस पर काम चालू है। अगर अब भी इत्तेहाद और तंजीम से सबक न लिया गया, इत्तेहाद और तंजीम से सबक न लिया गया, तो ये कौम यकीन मुहकम का भी, यकीन मोहकम का भी वही हश्र कर देगी, वही हश्र कर देगी। ज्यादा क्या अर्ज करूं, ज्यादा क्या अर्ज करूं, जरा सामने आ, जरा सामने आ, जरा पीठ खुजा, जरा पीठ खुजा, तेरा शुक्रिया कर दूं अदा, ऐसे न मचल तेरा दम ही निकल जाए ना। मेरा दम निकाल रहा, मार मार के तेरा दम निकाल दूंगा, समझा? ज्यादा क्या अर्ज करूं, ज्यादा क्या अर्ज करूं, झोपड़ी की छत से, झोपड़ी की छत से गर्द और ठंडी हवाएं, गर्द और ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं लहरा के आए। अरे ये मलबारी मदरसे के पीछे होटल क्या खोला है, दिन भर रिकॉर्ड बजाता रहता है। अजी मौलवी साहब, वो मलाबारी के होटल का रिकॉर्ड नहीं है, ये तो आपका शागिर्द शमशू गा रहा है। शमशू, शमशू गा रहा, शमशू गा रहा। मर जाएगा बुढ़ा। अरे हथियार दे दो। अरे ये नहीं, मेरा हथियार। ये लीजिए। झोपड़ी की छत से गर्द और ठंडी हवाएं आ रही हैं। छन छन करा रही। हाँ, छन 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 करा रही, छन छन करा रही हैं, आ रही है। मैं इस गर्द और ठंडी हवाओं के दरमियान, ज्यादा हायल होना नहीं चाहता, बकिया तफसीली रिपोर्ट तहरीर करके बिलमुशाफा ज़बानी अर्ज करूंगा। फक्त अज हद्दो अदब। जरा नाखून निकाल। आपका खादिम मोहब्बत अली सदर मुदर्रिस मदरसा तालीम बालिगान बकरा पीड़ी मेवा शाह लैन कराची हुकूमत इस्लामी पाकिस्तान। अरे
नाखून काटने को कहा था, अंगूठा काट दिया। पट्टी बांध, पट्टी बांध। हाँ, पट्टी बांध जल्दी से। साहब ऐसे पंखा चल रहा है जैसे कबाब भून रहा। अरे कुर्बान अली की औलाद, उस्ताद को काट के कबाब भूनते हो। बांध जल्दी बांध। बस लीजिए मलिक साहब, दस्तखत कर दीजिए। अरे कैसे करूं, अंगूठा कट गया ना। हाँ अजी दस्तखत कीजिए मलिक साहब। कर दे। मैं अपनी दस्तखत करूं? अरे मैं क्या मर गया हूँ? अच्छा आपकी। हाँ मोहब्बत अली। लीजिए मलिक साहब। मेरे ही किया है ना? बिल्कुल आपके हैं। जाली तो नहीं? अजी जाली में तो सुराख होते हैं वाली साहब। किमान जाली में सुराख होता है। किसी का दुपट्टा देखिएगा। नहीं मलिक साहब, जाली वाली नहीं है मलिक साहब, बिल्कुल आपके दस्तखत। मेरे ही है ना? हाँ देख लीजिए। नीचे लिख दे बकलम खोद। बकलम खोद। बकलम खोद। बकलम खोद। अरे क्या बात है, ये बच्चे अब तक नहीं आए ना? तो जी मलिक साहब वो पोस्ट ऑफिस के बाजू बैठकर जुआ खेल रहे हैं। अरे पोस्ट ऑफिस के बाजू बैठ के जुआ खेल रहे हैं? हाँ। अरे इसी वास्ते मनी ऑर्डर वक्त पे नहीं पहुंचते। बजा घंटी, बजा जरा घंटी बजा। हाँ एक यकीन मौका रह गया, उसके पीछे क्यों पड़ गया तू? चल रहने दे, आना है तो आएंगे, नहीं तो नहीं। मुझे परवाह नहीं है किसी की, समझा? सलामुअलैकुम वली साहब। वालेकुम सलाम। कौन? ये पहलवान। दूध वाला। दूध वाला। हाँ सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटे, जीते रहो। जी मलिक साहब। दूध वाले। जी मलिक साहब। क्या बात है बेटे, कल का दूध तो बहुत अच्छा आया था। कल जरा नलके बंद थे मलिक साहब। हाँ नलके बंद थे तो दूध अच्छा आया था। दूध में पानी मिलाते कम्बा। नलके बंद थे तो दूध अच्छा आया। देख रहे हो? सूट सापड़ी कमाल कटी कदर लंडो। मलाबारी है मतलब, मलाबारी। हाँ मलाबारी। मलाबारी। स्वामी कुछ चाहवाए है बेटे? इल्ले मारो, बैठो। सारे बाजार में लल्ले और इधर आए तो ले मारो। पूरा मोड़वी सो सलाम वालेकुम। अरे देख रहे हो जबान कितनी साफ हो गई इनकी। खड़े हो जाओ सब बख्तो, बुजुर्ग हैं हमारे। चांद खां धोबी हैं, मेरे बाप के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा हाँ, और जो पढ़ते हैं दो डालते। अच्छा तशीफ रखिए, बिठाइए, बैठिए। खां साहब आइए, खां साहब आइए, तशरीफ लाइए, जहाँ चाहे बैठिए। खां साहब मैंने तो आपको खुला छोड़ दिया है ना। खां साहब ओके जी कुछ नहीं खां साहब, कुछ नहीं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था, आपने घोड़ा तो दूर छोड़ा है ना?
घोड़ा को बहुत दूर छोड़े। शुक्रिया खां साहब, मेहरबानी आपकी। आपका घोड़ा हमारी जुग्गी खा रहा खां साहब, शुक्रिया। बैठिए बैठिए, हम बैठिए बैठे सबू बैठे, हाँ बैठे। प्यारे बच्चों जी, शाबाश शाबाश शाबाश। प्यारे बच्चों जी, चलो उठो, तराना पढ़ो। हाँ तराना। हाँ साहब, हाँ पढ़ो बेटे तराना। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। वादों के साए में हम पल कर जवां हुए हैं। वादों के साए में हम पल कर जवां हुए हैं। अनपढ़ है और जाहिल हर नौजवान हमारा। अनपढ़ है और जाहिल हर नौजवान हमारा। है रश के खुल्द अपना सहराए बकर पीड़ी। है रश के खुल्द अपना सहराए बकर पीड़ी। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। आमीन आमीन। बोले अरे कमबख्तो, फालिन के माने हिंदुस्तान की डिक्शनरी में पीछे हटने के। हटो मॉनिटर। जी मास्टर। दे रजिस्टर। रजिस्टर? हाजिरी की क्या जरूरत है मौलवी साहब? सभी हाजिर है। हाँ? सिर्फ खुदा बंदा गैर हाजिर है। अरे हाँ, वो खुदा बंदा के वालिद अल्लाह बंदा मिले थे। अच्छा अच्छा, उन्होंने 3 महीने की फीस मदरसे में दाखिल कर दी। अच्छा अच्छा। तो भाई अब हमारा भी ये फर्ज है कि 3 महीने की हाजिरी लगा दें। हाँ है ना? तो देखो आजकल हर स्कूल और हर कॉलेज में यही हो रहा है। अच्छा, मानी जाए जी मास्टर। तू लगा दे 3 महीने की हाजिरी।
अच्छा मैं लगा दूंगा, खुदा बंद लगा। हाँ लगा दूंगा, ठीक है ना? बिल्कुल। प्यारे बच्चों, चावल चावल चावल। प्यारे बच्चों जी प्यारे बच्चों, तुम्हारा कोर्स बदल गया है। मौलवी साहब, ये हर साल कोर्स क्यों बदलता है? हाँ, अरे इसको इतना भी नहीं मालूम? अरे बाबा, एक कोर्स रहने से कौम में इत्तेहाद पैदा होता। अच्छा। और एक ही व्यापारी का फायदा होता। हर साल कोर्स बदलने से सबका फायदा। देखो, महकमा तालीम से एक मुरासिला आया है, वो मैं तुमको पढ़ के सुना। ये लिखते हैं टू दी सदर मुदर्रिस। जी उर्दू में पढ़िए मौलवी साहब, उर्दू में पढ़िए। उर्दू? उर्दू? और क्या? अरे ये उर्दू नहीं है तो क्या है बाबा? ये उर्दू है ये। अरे बाबा, इतनी उर्दू तुम लोग नहीं समझते? कैसी? टू दी दिस डैड मम्मी डैडी हानी हाय। ये तो समझते मिलता। मिकलोड रोड, बंस रोड, फिरे रोड, माल रोड, ये उर्दू ही तो है बाबा। हाँ ये तो है उर्दू में। अगर ऐसी उर्दू है तो मजा पढ़िए। हाँ जरूर पढ़िए। सुनो, लिखते हैं बांगे जरा, बाले जिब्रील, मुफद्दस हाली और यादगार गालिब महंगी और मुश्किल किताबें होने की वजह से कोर्स से खारिज की जाती। अरे इनके बजाय जिंदा और जदीद शायरों का सस्ता कलाम, यानी 40 फिल्मों के गाने एक आने में दाखिले कोर्स किए जाते। ताकि गरीब और नादार तलबा में तालीम का शौक हो और तालीम आम हो। ये 20 किताबें बड़ी मुश्किल से मकामी सिनेमा घरों से हासिल करके भेजी जा रही हैं। भेजी जा रही हैं, भेजी जा रही हैं, भेजी जा रही हैं, रवाना की जा रही। रवाना की जा रही। ये 20 किताबें बड़ी मुश्किल से मकामी सिनेमा घरों से हासिल करके रवाना की जा रही हैं। इन किताबों को गरीब और नादार तलबा में मुफ्त तकसीम करके ये मदरसा तुम्हारे बाप का? हाँ, आप सर का नाम नहीं लेना मौलवी साहब। हाँ, बाप बाप का नाम नहीं लेना। हाँ जी, मैंने आपके बाप का नाम कब लिया देखे? जी अभी लिया है, सबके सामने लिया है। हाँ जी, वो तो मैंने आपके बाप को मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया था बेटे। ये क्या बात हुई? देखिए ना, अब आप ही बताइए, पढ़ने लिखने से आपके बाप दादा का क्या ताल्लुक है? कुछ नहीं। ये बात तो ठीक। हाँ ठीक, मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया था तो ठीक। तो लिखते हैं कि ये 20 किताबें बड़ी मुश्किल से मकानी सिनेमा घरों से हासिल करके रवाना की जा रही हैं। इन किताबों को गरीब और नादार तलबा में मुफ्त तकसीम करके 2 आने हदिया वसूल कर लिए जाए। चाले बुड्ढे की चार आने नहीं लिखे, 2 आने। मानीटा? जी मास्टर। ले बात है ये किताब। तो भाई शेर ये चाचाओं ने बैठा है।
अरे कमबख्त, तालीम का भी विलय होने लगा क्या? दूध वाले जी मल साहब, किताब खोलो बेटे। हाँ, गजल पढ़ो। मल साहब, इसमें तो गजल है ही ना, गाना है गाना। मेरी साहब, इसमें तो गजल है ही ना, गाना है गाना। अरे बाबा, गाना है तो गाना पढ़, कोर्स पर मेरा क्या इख्तियार है? हाँ, पढ़। घूंघट उठा लूं के घूंघट निकालूं, सैया जी का कहना मैं मानू के टालू। घूंघट उठा लूं के घूंघट निकालू, सैया जी का कहना मैं मानू के टालू। घूंघट उठा लूं के घूंघट निकालू, सैया जी का कहना मैं मानू के टालू। घूंघट उठा लूं के घूंघट निकालू, सैया जी का कहना मैं मानू के टालू। अरे कमबख्तो, ये क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? मुझे तो ये लड़कियों के कोर्स की गजल मालूम होती है। वो चाहे घूंघट निकाले, चाहे ना निकाले, चाहे पर्दा करें, चाहे ना करें। तुम कौन होते हो उनके निजी मामलात में दखल देने वाले? चलो, ये गजल कोर्स से खारिज। शमशू जी, पढ़ो बेटे। देख, पढ़ने के नाम के साथ ही इसकी सूरत कैसी बनी। मेरी लाडले लाडले रे रे, मेरी लाडले लाडले रे रे, बनी है तारों की तू। आप बनी ना रानी, आप बनी ना रानी। बात नहीं के, अरे 1000 दफा कह चुका हूँ कि बाबा, ये जदीद शायरों का कलाम है, तहसील लफ्ज़ पढ़ने से नसर हो जाता है। दांत से पढ़ो कमबख्तो। मेरी लाडली रे बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू रानी। दादा 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 दादा, मेरी लाडली रे बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू रानी। पटलर नाचे नाचे मोती आया। गले साहब का टोपा नाचे। गले साहब का टोपा नाचे, गोरी में मुका साया। मेरी लाडली बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू रानी। प्यारे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। प्यारे बच्चों जी, प्यारे बच्चों, इसमें एक तलमी है। साहब, ये तलमी के मानी क्या होते हैं? तलमी, हाँ,
प्यारे बच्चों, इसमें तलवी है। हाजी मतलब बताइए तलवी का। तलवी है, तलवी। बहुत अच्छे खलीफा। सुनो। ये इतना बड़ा हो गया, इसको अब तक तलवी के माने नहीं मालूम। प्यारे बच्चों जी, तुमने से किसी को तलवी के माने मालूम है? नहीं मालूम? नहीं? अरे तो बहुत आसान है। देखो तलवी के माने हैं, देखो तलवी जो है ना, तलवी के दरअसल दो माने। अच्छा, दो माने। यानी एक है लुग़वी माने, अच्छा, और एक है मानवी माने। एक है लुग़वी माने और एक है मानवी माने। इन दोनों को मिलाकर जो तीसरे माने निकले हैं ना, उसका मतलब है तलमी। तलमी। यानी इसमें तलमी है, यानी ये एक नज़्म में लिखा हुआ मंजूम सिपाहनामा है, जो हम पाकिस्तानियों की तरफ से मलिका क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी के मौके पर उसकी छोटी बहन मार्गरेट की खिदमत में पेश किया गया। अरे वाह, पेश किया गया। इसमें चांद हम हैं, क्योंकि हमारे झंडे पर चांद है। इसमें चांद हम हैं और तारा है मार्गरेट, और तारों की रानी है उसकी बड़ी बहन मलिका क्वीन एलिजाबेथ। अरे वाह। और हम सब यानी कॉमनवेल्थ की तरफ इशारा है कि वो तो तारों की रानी बन गई है और हम सब दरे दर के होके रह गए। मल्लबारी इतना सामी गजल पढ़ो बेटे। दिन है प्यारे प्यारे मासूम तेरी, तू मेरा मैं तेरी, ऐसे में तू आ जा रे, ऐसे में तू आ जा रे। अरे कमबख्त, तो ये क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? ऐसा मालूम होता है जैसे अंधेरे लालू खेत में बिजली चमक रही है, कुछ रास्ता दिखाई देता है, कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता। आखिर पढ़ क्या रहे हो तुम लोग? साहब, जो कुछ किताब में लिखा है वो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? क्या लिखा है किताब में? अरे ये गजल हो रही है या कौरव पांडवों की जंग? मैं आज ही इंस्पेक्टर साहब को लिख के देता हूं कि खुदा के वास्ते ये कौरव पांडवों की जंग बंद कर, किसी एक जबान को अपना लो। आखिर इस एक मुल्क में 4-4 जबानों की खिचड़ी कब तक पकती रहे? चलो, अपने जाती इख्तियारात की बिना पर ये गजल भी कोर्ट से खारिज कर। ये आपके जाती इख्तियारात है मौलवी साहब? हाँ। अच्छा, चांद कहाँ धोबी? कीबोर्ड भी साहब देख रहे हैं कितनी खुशी होती है इनको पढ़ने के नाम से। एक तू है, आप गजल पढ़िए। पढ़िए। लूट कर मेरा छुप गए हो तुम कहाँ
कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम न जाने किस जहाँ में खो गए, हम बड़ी दुनिया में तन्हा रह गए, तुम न जाने किस जहाँ में खो गए। हो गया बुढ़ा। मौलवी साहेब, ओ मौलवी साहेब। अरे कौन? अजी मैं मैनेजर हूँ मौलवी साहब। अरे इतना सुबह सुबह आ गया मॉनिटर। लो की सुबह अब हो रही है। अजी मतलब समझाइए, मतलब दुनिया में मतलब के बगैर कोई काम ही नहीं होता क्या? प्यारे बच्चों, जरा सोने दो रे। हाँ? अजी मतलब समझाइए, गजल का मतलब समझाइए। ये अशार दरअसल मरहूम की शान में लिखे गए। ये अशार दरअसल मरहूम की शान में लिखे गए। जी कौन मरहूम मौलवी साहब? सिंध के मशहूर डाकू रहीम हिंगुर मरहूम। किसने लिखे हैं? खुद मरहूम ने लिखे। मरहूम की शान में खुद मरहूम ने लिखे। वो क्यों लिखे हैं मौलवी साहब? क्यों लिखते हैं? हाँ? क्यों लिखते हैं? हाँ? उनकी मर्जी। हाँ मर्जी थी। उनकी मर्जी। दरअसल हाँ? सिंध के मशहूर डाकू हाँ? रहीम हिंगुर मरहूम मकबूर नब्बर अल्लाह मरकदहू जब सिंध के देहातों को लूट कर जंगलों में छुप जाया करते थे, तो सिंध की पुलिस उनकी तलाश में जंगल जंगल फिरकर ये गाया करती थी, लूट कर मेरा जहां छुप गए हो, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम न जाने किस जहां में खो गए। बड़ा अच्छा मतलब। मॉनिटर जी मास्टर। बड़ा खां साहब से पूछ के कुछ तबीयत पढ़ने की तरफ माइल है क्या? हाँ साहब। अरे कमबख्त, आहिस्ता पूछ। बेटा मैं खुद ही पूछ लेता हूँ, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। खां साहब। ओके जी जी, कुछ नहीं खां साहब, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही है। मॉनिटर जी मेरा ख्याल है आज इनकी तबीयत माइल नहीं है पढ़ने की तरफ। मालूम तो कुछ ऐसा ही होता मेरा ख्याल है आज छोड़ दें। है। अच्छा छोड़ो बेटा। मॉनिटर जी मास्टर। गजल पढ़। अच्छा धक 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 जिया करे धक, अखियों में अखियां डाल के न तक, धक धक धक, जिया करे धक, अखियों में अखियां डाल के न तक। सुन ले ओ गोरी, वो तूने चोरी चोरी दिल की कहानी, आंखों की जबानी, कह दे बलम से अपने सनम से, अपने सनम से, झुकी 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 नजरों से होता है शक, अखियों में अखियां डाल के न तक, धक धक धक, जिया करे धक, अखियों में अखियां डाल के न तक।
प्यारे बच्चों, जी खुदा की कसम, आंखों में आशिकी का नक्शा फिर गया। है। इन अशार में आशिकी अपनी इंतहा को पहुंची। शायर कहता है अच्छा बताओ ये धक धक का है क्या? मैं बताऊं? बताओ बेटे। ये किसी के उस तरह तेज करने की आवाज। अरे हज्जाम की औलाद, हज्जाम के जहन में तो उस तरह की आवाज आई। मैं बताऊं मलिक साहब? हाँ बताओ बेटे। ये किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज मालूम होती है मलिक साहब? हाँ तू मॉनिटर है ना? हाँ। तेरा बाप भी मेरे पास मॉनिटर था पहले। ये दरअसल किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज, यानी आजकल कोई हिंदुस्तान का दरवाजा खटखटा रहा। अच्छा। अच्छा बताओ कौन खटखटा रहा है? मतलब मेरा ख्याल है अमेरिका हुआ है, रूस हुआ। अरे हज्जाम की औलाद, मैं कह रहा हूं कि ये आशिकी की अशार है, तो इसमें सियासत का उस्तरा चला रहा है। अरे ना अमेरिका ना ढमरीका, ना रूस ना फूस, वक्त पे कौन किसके काम आता है कम्बा। असल में ये दरवाजा खटखटाने वाली चीज का नाम है उसकी कमबख्ती। अच्छा। यानी आजकल हिंदुस्तान के दरवाजे पर उसकी कमबख्ती दस्तक दे रही है और वो उसे अपनी महबूबा समझकर कह रहा है, सुन ले वो तूने चोरी चोरी दिल की कहानी, आंखों की जबानी, कैसे बलम से अपने सनम से, अपने सनम से। सनम को पकड़ लो, मजबूती से पकड़ लो। वो क्या करती है? वो छोड़ो सनम को। जी मैं कहते सनम को छोड़ो छोड़ो। छोड़ देता हूँ। हाँ साहब, सनम को अभी छोड़ता हूँ। जी ये लीजिए, छोड़ दिया सनम को। क्या खुदा की कसम, शायरी को छोड़ देता हूँ, उर्दू को छोड़ देता हूँ। शुक्रिया खान साहब, सनम को पकड़ के। चलो भाई, शायरी खत्म, हिसाब शुरू। 1 2 3 आया मौसम है रंगीन। अरे 1 2 3 आया मौसम है रंगीन। अरे 1 2 3 आया मौसम है रंगीन। अरे शायरी खत्म हो गई बाबा, हिसाब शुरू हो गया। खत्म हो गई मलिक साहब? चलने देना था मलिक साहब, ईमान से बहुत मजा आ रहा, मजा आ रहा। ये मुसलमान कौम को नाचना होना, गाना होना, बजाना होना, हिसाब का नाम आते मलिक साहब क्या है देख रहे? हिसाब के नाम के साथ ही मौलवी साहब, और पूछो क्या है, बता क्या है? कम बात है। चलो कापियां लो और एक सवाल हल करो। बोलिए। पाकिस्तानी इल्मुल हिसाब के एक सवाल हल करो, बहुत अहम है। लिखो, अगर 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 कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मॉनिटर बोलेगा। अगर 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 मैं कह चुका हूं कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मॉनिटर बोलेगा। अगर 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 अगरबत्ती की औलाद, कह रहा हूं कि सिर्फ मॉनिटर बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा, फिर भी अगर अगर कम बात कहेगा।
मैनेजर। जी मास्टर। काट दे इसका कागज, काट दिया इसका कागज। अगर 12 साल में, अब बोलो, अगर 12 साल में, अगर 12 साल में एक डिग्रोड कॉलोनी बसाई जा सकती है, एक डिग्रोड कॉलोनी बसाई। अच्छी अल्लाह का नाम लीजिए वली साहब, कौन बताता? अरे मैं हिसाब का सवाल हल करने को कह रहा हूं तो तू पॉलिसी पे बहस कर रहा। अरे क्या मदरसा वदरसा बंद कराने का इरादा है? सामने वो एक डिग्रोड कॉलोनी बसाई जा सकती है। अगर 12 साल में एक डिग्रोड कॉलोनी बसाई जा सकती है तो बताओ 24 साल में कितनी डिग्रोड कॉलोनियां बसाई जाएंगी? सवाल बहुत अहम है, बोर्ड के इम्तिहान में आ सकता है। अगर 12 साल में एक डिग्रोड कॉलोनी तो बताओ 24 साल में कितनी? हाँ, समझदारी से करो। मतलब मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटे बताओ। अगर 12 साल में एक डिग्रोड कॉलोनी, हाँ तो 24 साल में 2। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ हाँ बेटे हाँ सुनो, इसी सिलसिले का एक दूसरा सवाल है बेटे, इसका जवाब भी आप ही दे दीजिए। देखिए एक डिग्रोड कॉलोनी में 12,000 मकानात बनाए जाते हैं, तो बताओ 2 में कितने? एक में 12,000 तो 2 में कितने हैं? ये सवाल भी बड़ा अहम है। हाँ, एक में 12,000 तो 2 में कितने? हाँ, देखो एक में 12,000 तो 2 में कितने? एक में 12,000, एक में 12,000 तो 2 में 6। अरे कम बकार, अरे जुजात में कल निकाला, कुछ तो अकल से काम ले। अरे कभी कहते अकल, कभी कहते अकल, आखिर काम किससे लेना है? अरे बाबा एक में 12,000 तो 2 में कितने? मैं 2 से ज़रब देने को कह रहा हूं तो तू तकसीम कर रहा है। हाँ? अजीब मकानात तकसीम किए जाते हैं कि ज़रब दिए जाते हैं? पता ही नहीं है मुझे। अजीब किधर है? दिमाग सेंटर में है कि नहीं है? हाँ सेंटर पे हमला। यानी अब सेंटर जरा खामोश हो गया तो सूबे इतने मुजोर हो गए कि सेंटर पे हमला करने लगे। खुदा की कसम मार मार के 1 यूनिट बना दूंगा। आज इतने बरस से कह रहा हूं कि बाबा एक मदरसे के बच्चे हो, आपस में मिलजुल कर रहो, तरक्की करो, दुनिया में नाम पैदा करो। आज इस झोपड़ी में पड़े हो, कल इसे अपनी मेहनतों से पक्की इमारत में तब्दील करो। लेकिन हर शख्स अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना रहा है, और अब तो हद ये हो गई है कि मदरसे पर जुमले कसने लगे। खुदा की कसम जान दे दूंगा, लेकिन मदरसे पर आंच नहीं आने दूंगा। जहां डंडा देखा बस पांव दबाने आ गए। बस करो खुदा मत, चलो ईमानदारी से काम करो, यही काफी। चलो हिसाब खत्म, तारीख शुरू। लिखो मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में शादी की थी। शादी की थी। अरे कम्बख्त 17 साल की उम्र में तो आजकल के लौंडे शादी करते हैं। उसने 17 साल की उम्र में सिंध के मुल्क को फतह किया। जरा अपनी हालतों को देखो, 40-40 साल के संडे मुफ्तंडे हुए हो। कोई बकरे छील रहा, कोई दूध में पानी मिला, कोई हजामत बना रहा है,
कोई विक्टोरिया करा रहा है। आज कश्मीर को हाथ से निकले हुए इतने बरस हो गए, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं गिरेंगी थी। आखिर ये ताकत, ये जवानी किस दिन काम आएगी? अरे आज इतने बरस से पढ़ा रहा हूं, लेकिन कोई भी पहली जमात से आगे ही नहीं बढ़ा। तो क्या मोहम्मद बिन कासिम ग्रेजुएट था मौलवी साहब? अरे मोहम्मद बिन कासिम को ग्रेजुएट बोल दिया। अरे कब बखौर, अरे जहन्नमी मोहम्मद बिन कासिम को ग्रेजुएट बोल दिया। अरे किस आग में जलाया जाएगा काफिर? अरे मोहम्मद बिन कासिम को ग्रेजुएट बोल दिया। अरे मोहम्मद बिन कासिम को ग्रेजुएट बोल दिया। जहन्नमी काफिर। अरे कम बखौर, अगर वो ग्रेजुएट होता तो आज जूना मार्केट में पुराने खोल दे। नहीं बोलता। मोहम्मद बिन कासिम को ग्रेजुएट बोल दिया। खैर मैं साहब छोड़िए तारीख और जमहूरियत का सबक पढ़ाइए। जमहूरियत का सबक पढ़ाइए आप। जमहूरियत का सबक? हाँ। बाप दादा का नाम नहीं जानते, मोहम्मद बिन कासिम कौन था ये नहीं जानते। खुदा की कसम, मोहम्मद बिन कासिम को लाके सामने खड़ा कर दूंगा तो नहीं पहचानेंगे कि ये कौन है। और कह रहा जमहूरियत का सबक पढ़ा। अच्छा बता, जमहूरियत किसे कहते हैं? मैं बताऊं? बता। अरे वही जहाँ सारे स्काउट के लड़के जमा होते हैं। अरे वो जमहूरी है बाबा, वो जमहूरी है। जमहूरियत के माने तुम लोग नहीं जानते जमहूरियत? नहीं जानते। अरे इतने मिलके बैठे फिर भी नहीं जानते। देखो मैं बताता हूँ। जमहूरियत के माने जिसकी तादाद ज्यादा उसकी हुकूमत, जो ज्यादा वोट खरीद सके वो वजीर। समझे? ये क्या बात हुई मलिक साहब? नहीं समझ में आती। नहीं समझे? अच्छा देखो, मेरे सवाल का जवाब तो खुद बखुद समझ में आए। ये बताओ कि हुमायूं का बेटा कौन था? खामोश। हुमायूं का बेटा अकबर कहने वाले हाथ उठाए। 1 2, चल छोड़ दे हाथ, छोड़ दे। हुमायूं का बेटा बाबर कहने वाले हाथ उठाए। 1 2 3 4। लिहाजा जमहूरी तरीके से साबित हुआ हुमायूं का बेटा बाबर था। यही जमहूरियत है और यहाँ जमहूरियत की तारीख खत्म। भाई साहब एक आम मालूमात का सवाल है, जरा जवाब दे दीजिए आप। आम मालूमात कोर्स में नहीं है। अजी वो आम मालूमात कोर्स में नहीं है, और वो मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करो। अजी वो आम मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करो। मुहावरा है मुंह में पानी भर आना। हाँ, आसान और सादे अल्फाज में इस्तेमाल करो बेटे। मुंह में पानी भर आना। मुंह में पानी भरा। दूध वाले जी मलिक, आप इस मुहावरे को इस्तेमाल करें बेटे, इस वास्ते के पानी से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है ना। आसानी है आपके लिए। हाँ, चलिए। मुंह में पानी भरा। मुंह में पानी भरा। ऊंची ऊंची कुर्सियों को देखकर आवाम के मुंह में पानी भरा आता है। सुन रहे? ऊंची ऊंची कुर्सियों को देखकर आवाम के मुंह में पानी भरा आता है। जैसे ऊंची कुर्सियों के नीचे से गंगा बहती है। अभी हाँ भी कह रहा। अरे मैं कह रहा हूँ बाबा कि सीधे साधे और आसान अल्फाज में इस्तेमाल करो, तो कह रहा हूँ ऊंची ऊंची कुर्सियों के नीचे है। देखो, मुंह में पानी भराना यही है ना। अब देखो मैं इसे इस्तेमाल करके बता। मुंह में पानी भर आना। जी, सादा। अच्छा, सादा, आसान, सहज,
सलीस समझे अल्फाज में इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। मुंह में पानी भर आना, आसान आसान, बिल्कुल आसान। देखो इस मुहावरे को, अगर ये मुहावरा जो है आगे आए इम्तिहान और इसके 5 नंबर हुए, अच्छा, और तुमने इसे सीधे सादे आसान और सहल अल्फाज में इस मुहावरे को इस्तेमाल कर लिया, अच्छा, तो और वो सवाल अगर 5 नंबर का है तो मुम्तहिन खुश होके 10 नंबर भी दे सकते। अच्छा, 10 भी दे सकते। अच्छा अच्छा, कैसा मतलब? हाँ देखो, मुंह में पानी भरा, पानी के नलके को सादा सादा और आसान। देखो सुनो, पानी के नलके को मुंह लगाकर चूसने से मुंह में पानी भरा। ठीक है, अरे वो आम मालूमात का सवाल है, जरा जवाब दे दीजिए। आम मालूमात कोर्ट में नहीं है। चलो, जैसे आप मुहावरों में बहुत माहिर हैं, चलो मुहावरा इस्तेमाल करो। 4 चांद लगाना। मैं इस्तेमाल करूं? जी हाँ, 4 चांद लगाना। 4 चांद लगाना, 4 चांद लगाना। हाँ हाँ, वो अमेरिका ने साइंसी तरक्की में 4 चांद लगा दिए हैं। हाँ, सुन रहे हैं? अमेरिका ने साइंसी तरक्की में 4 चांद लगा दिए। हाँ, आपने देखे? हाँ, आप मुसलमान? अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौल वला। अरे क्यों काफिरों के प्रोपेगेंडे में आए हुए हो? अरे अमेरिका 4 क्या, 3 क्या, 2 क्या, 1 क्या, चांद का अगर इतना सा टुकड़ा, इतना रत्ती बराबर टुकड़ा भी लगा था, तो क्या हमारी रुए हिलाल कमेटी ऐलान नहीं करती? बिल्कुल सही साहब, वो आम मालूमात का सवाल है, आप जवाब ही नहीं दे रहे। आप आम मालूमात का सवाल करता है? अरे समझता मैं आम मालूमात में कमजोर हूँ? नहीं तू समझता कमजोर हूँ मैं? नहीं। उस दिन इंस्पेक्टर साहब मुआयने के लिए आए थे, तो उस दिन भी आम मालूमात के सवाल पूछ रहा था। तू समझता आम मालूमात में कमजोर हूँ? आम मालूमात के बच्चे हसाई की औलाद टीम बनाने वाले हैं। आम मालूमात पूछेगा? आइंदा से पूछेगा? नहीं पूछूंगा। अच्छा नहीं पूछूंगा। अच्छा चल नहीं पूछूंगा। नहीं पूछता हूँ। पूछेगा? नहीं पूछता मतलब। अच्छा चल पूछ। नहीं पूछ। नहीं, अब तो तेरे बाप को पूछना पड़ेगा। पूछना पड़ेगा। पूछ। क्या पूछना? पूछू ना? पूछ। वो उर्दू। हाँ, उर्दू पाकिस्तान की सरकारी जबान क्यों नहीं होती मौली साहब? हाँ, कीमा बनाने वाले ये बहुत बड़े क्या सवाल था तेरा? एक मरतबा फिर दोहरा दे। क्या सवाल है वो? हाँ बता। उर्दू। हाँ, उर्दू पाकिस्तान की सरकारी जबान क्यों नहीं होती? अरे अब तक वही सवाल चला आ रहा है क्या? आज इतने अरसे से यही सवाल चला रहा है, कोई जवाब नहीं दे सका। सबसे सवाल डाल दिया है, दे दे कोई जवाब। गोल सुना दिया हूँ। अच्छा, तेरे इस सवाल के जवाब के लिए
तू मेरे सवाल का जवाब। आसान सवाल पूछना मौलवी साहब। आसानी पूछूंगा। हाँ? आसानी पूछूंगा। आसानी पूछेंगे ना? ये बता कि तू अपने घर में हाँ हाँ। माँ से ज्यादा डरता है या बाप से? मैं अपने घर में? हाँ। पूछ क्या? यही बता। यही बताओ। तू अपने घर में हाँ। माँ से ज्यादा डरता है या बाप से? मैं अपने घर में बाप से। हाँ, तो फिर मातृ जबान सरकारी जबान कैसे हो सकती है? अच्छा है? जिसका जोर चलता है उसकी जबान होती है। हाँ, समझ गया। आम मालूमात के बच्चे पूछा चला जा रहा है, आम मालूमात आम मालूमात आम मालूमात। जब मैं कह रहा हूँ कि मत पूछ, है? अरे हम भी कभी तालिब इल्म थे, मदरसे में हमने भी पढ़ा है। जब किसी बुजुर्ग का नाम आता था तो सिर्फ नाम सुन के अदब से उठ के खड़े हो जाते, समझे? और मास्टर साहब बार बार पूछते थे सवाल, मजाक है हम कोई जवाब दे जाए? कभी नहीं। और हमने तो अपनी तरफ से कभी नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, बस खामोश बैठे रहे। अच्छा। इसे कहते हैं अदब। अरे सुनते हो? हैं? सुन रहे हो? मुल्तान वाली खाला आई है। कौन आई है? मुल्तान वाली खाला। आंटी। अच्छा, मुल्तान वाली खाना आई है। मानीगर, तू यहाँ खाया। मैं अभी खाना को कदम बोसी करके अभी आता हूँ। अरे अब मौलवी साहब अब आते क्यों है आप? अब वैसे भी टाइम बहुत हो गया है, अब छुट्टी कर दीजिए मौलवी साहब। छुट्टी कर दूं? मगर कम वक्त हो, ये तो बताओ कि फीस भी लाए हो कि नहीं? फीस? मगर एक शर्त पे छुट्टी करता हूँ बेटे। क्या बोलते हैं सर? वो ये कि कल आओगे तो फीस लेकर आओ। वादा? पक्का। चलो छुट्टी। मौलवी साहब